Okay, this is our first lecture on a previous year question paper, and this is, I think, the last year mid-semester question paper. And in this lecture, we will see how to start a question, how to start questions in the exam. But uh, I may not give all the details for all the questions, so the students they can add their some more information on the solution if they want. Yeah. So the first question is we have to verify Lagrange mean value theorem for the function fx equal to 2x square minus 7x plus 10 in the interval. So in the first question we what we have been given. So first we need to write the function. Okay. 2x square minus 7x plus 10 and the interval minus 7x plus 10 and the interval that they have given 2 to 5. So what we have to our what is our main goal? We have to verify Lagrange's mean value theorem. Lagrange's mean value theorem. So you can write the whole mean value theorem, but मैं यहाँ पे just idea दे रहा हूँ कि तुम कैसे कर सकते हो. Okay, the first thing is about Lagrange mean value theorem. तुम्हें आइडिया रहना चाहिए. Okay, so Lagrange mean value theorem में हमें क्या क्या चाहिए रहता है. Suppose if you want to verify Lagrange mean value theorem on an interval a comma b, so the first condition is f is continuous on the closed and bounded interval a comma b. Second condition रहती थी f is differentiable on the open interval. F is differentiable on a comma b. So then there exists by Lagrange. तो final conclusion क्या रहता है? There exists at least one c, at least one c in between a comma b, is such that fb minus fa over b minus a equal to f dash c. तो ट्राई करना कि साइड में लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट्स का पार्ट भी लिख सकते हो. तो पहला हमें क्या रहता है कॉन्टिन्यूटी. फर्स्ट पार्ट है कॉन्टिन्यूटी ऑन द क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल ए कॉमा बी. तो यहाँ पे एक तरीका तो है कि सिंस एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, एफ इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन 2,5. या सेकंड हम क्या क्या चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी ऑन ओपन इंटरवल 2,5. हम यहाँ पे क्या करते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं दैट विल बी 4x minus 7, yeah, for all x belong to R. So this implies the function f is differentiable. The function f, the function f is differentiable on the open interval 2,5. या दूसरा तरीका कॉन्टिन्यूटी प्रूव करने का तुम ऐसे भी लिख सकते थे कॉन्टिन्यूटी वाले पार्ट में सिंस f is differentiable. ये इस पार्ट के लिए. ओके, so since f is differentiable on R, so f is R है रियल नंबर, so f is continuous on 2,5. तो अभी हमने दो कंडीशन चेक कर ली और फंक्शन ने सेटिस्फाई कर दी लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन. सो सो बाय लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, तो यहाँ पे आपको पूरा लिखना है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम. सो बाय लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, एटलीस्ट वन सी कहाँ पे इन बिटवीन 2,5 कि सच दैट एफ बी माइनस एफ ए ओवर बी माइनस ए. और यहाँ पे इस केस में अगर तुम सब्स्टिट्यूट करोगे इस केस में बी रहेगा तुम्हारा 5 और ए है 2. सो एफ फाइव माइनस एफ टू ओवर 5 माइनस 2 इक्वल टू एफ डैश सी. सो इफ यू कंप्यूट एफ ऑफ इतना रख सकते हो और मे बी बाद में कैलकुलेशन करके सी की वैल्यू भी तुम यहाँ पे कंप्यूट कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट वी check what will be f5. So the function is 2x square minus 7x plus 10. अगर हमें क्वेश्चन में जस्ट इतना पूछा है ओके
यहाँ पे वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो हम शो कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक सी मिलेगा जो ये कंडीशन को, क्योंकि वेरीफाई का मतलब हमें पूरा लास्ट तक करना है। सो एफ ऑफ फाइव विल बी 2 times 25 minus 35 plus 10, so it will be 50, 50 minus 35, 15, and then 25. What will be f2? It will be 4 minus 14 plus 10. So it will be just f of 2. It will be 8, I think. It will be 8 because it is 4 and 2 8, 7, 14 plus 10, 18. That is 4. So what we get? 25 minus 4 by 3, and f dash c. What is f dash c? So in this case हमने f dash ऑलरेडी कंप्यूट किया है, so 2c, सॉरी 4c माइनस 7। तो बीच में चेक करना कि कहीं कैलकुलेशन नहीं है, बट इस लेक्चर का मेन है कि तुम्हें एटलीस्ट बेसिक चीजें समझ में आए। ओके, दैट इज 4c, you can add here 7 here, so it will be 21 plus 21, 7 तुमने उस साइड शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू 4c, so c इक्वल टू 42, 1 by 42 by 12, and you can compute, so it will be somewhere in between 2 and 5। एंड इन क्वेश्चन नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास y एक फंक्शन हमें दे रखा है और हमें रिलेशन किस में निकालना है? yn+2, yn+1 एंड yn में। तो ऑलरेडी हमें यहाँ से आइडिया क्लियर रहना चाहिए कि इस टाइप के रिलेशन हम कहाँ से सॉल्व करते हैं? लेबनिज थ्योरम से। और एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है? ऑलरेडी हमने ये वाला क्वेश्चन लेबनिज थ्योरम वाले वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है, सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। तो इसलिए हम ये सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे नहीं, क्योंकि अगेन अगर मैं यहाँ पे करूंगा सो वी आर रिपीटिंग द सेम स्टेप्स, या सो इट इज बेटर यू वॉच दैट लेक्चर ऑन, you can watch that lecture again. So now in the third question, क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पे क्या करना है? यूलर्स थ्योरम स्टेट करना है और अप्लाई यूलर थ्योरम करना है। अगर 3 वेरिएबल के लिए यूलर, अगर जस्ट यूलर थ्योरम पूछा हुआ है और फंक्शन यहाँ पे 2 वेरिएबल्स पे दिया रहता कुछ, तो तुम यूलर फंक्शंस की 2 वेरिएबल्स वाली डेफिनेशन भी लगा सकते थे। बट यहाँ पे होमोजीनियस फंक्शन 3 वेरिएबल्स में है, तो हम ट्राई करेंगे कि यूलर्स थ्योरम का 3 वेरिएबल वाला लिखने का। एंड ऑलरेडी स्टेटमेंट क्या है, हमने यूलर्स थ्योरम वाले वीडियो लेक्चर में तुम्हें मिल जाएगा। तो हम जस्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यूलर्स थ्योरम क्या रहता है यहाँ पे। ओके, यूलर्स थ्योरम। सो नाउ लेट u x y comma z be a homogeneous function of degree n, homogeneous function of degree so degree n. So in case if uh, okay, you can start with let or say if ux y comma z be a homogeneous function of degree n, then जो ये एक्सप्रेशन रहता है x dou u by dou x, y dou u by dou y प्लस z dou u by dou z, इसकी वैल्यू रहती है n टाइम्स u, जो हमने देखा हुआ था। ये तो हमने स्टेटमेंट हमने लिख दी। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? क्वेश्चन में अप्लाई यूलर्स थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू, दिस वैल्यू फाइंड करना है जहां पे हमारे पास ये। सो हम देखेंगे कि गिवन u इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो यूलर्स थ्योरम चेक करने के लिए पहले हमें क्या चेक करना होगा? होमोजीनियस फंक्शन। और हम कैसे चेक करते हैं? होमोजीनियस के लिए हम x को रिप्लेस करते हैं लैम्डा x, y को लैम्डा y, z को लैम्डा z। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई लैम्डा x प्लस लैम्डा y प्लस लैम्डा z। सो व्हाट विल इट बी? लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर नीचे से लैम्डा कॉमन, इस साइड से लैम्डा कॉमन लोगी तो x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से क्या बनेगा? लैम्डा स्क्वायर लैम्डा पावर 1/2, एंड हमारे पास ये फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड।
सो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे सो लैम्डा पावर कितना आएगा, 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, ये वाला कैसे आया, 2 - 1/2। ओके, जो ये एक्सप्रेशन हमने सॉल्व कर रखा है, सो इसे तुम जस्ट लिख सकते हो λ/2 एफ ऑफ यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहां से क्या पता चलता है, यू एक्स वाई जेड इज ए होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री कितना है, 3/2। सो देयरफॉर बाय यूलर्स थ्योरम और बाय ऑयलर्स थ्योरम, जो x डो यू बाई डो एक्स प्लस y डो यू बाई डो वाई प्लस z डो यू बाई डो जेड आएगा, दैट विल बी 3 टाइम्स u। और तुमने u की वैल्यू लास्ट में यहाँ पे क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, हमने यूलर थ्योरम पे और भी क्वेश्चन कर रखे हैं इंटरेस्टिंग, मे बी उनमें से भी आ सकता है, सेकेंड पार्ट से भी। एंड अदरवाइज द क्वेश्चन पेपर इज वेरी इजी। और अगर तुमने क्लास में ध्यान दिया है और या तुम्हें कॉन्सेप्ट आते हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर विद इन 30 मिनट्स। ओके, उससे ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए, बट अगेन एग्जाम 1.5 आवर का है, सो यू कैन टेक योर टाइम, और तुम और भी डिटेल जो तुम बीच में देना चाहते हो दे सकते हो। ओके, इन द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव टू, by double integration we have to find the area of the region bounded by y-axis, y equal to 4 and the line y equal to 2x. So we will just I will write the question here. Okay, so it will become a bit easier for us to see the question. So in the fourth question, question 4, directly, okay, just I am writing it here, solution of 4। यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकालना है। एंड सो ओके, सो वी हैव टू कंप्यूट, सो वी हैव टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द रीजन, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y एक्सिस and y equal to 4 and y equal to 2x. So what we know, so the what formula, area of a region r, एरिया ऑफ ए रीजन आर, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, dx dy ओवर द रीजन आर। बट उसके लिए पहले हमें रीजन ड्रॉ करना होगा, तो ये है हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस। ओके, अब y एक्सिस कौन सा रहता है, ये वाला हो गया, तो यहां से क्या, y एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0, हमें दे रखा है y इक्वल टू 4 वाली लाइन है, एंड एक लाइन है y इक्वल टू 2x। तो इन तीनों से घिरा हुआ रीजन क्या है, दिस इज द शेडेड रीजन y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x की लिमिट भी पहले लेके चल सकते हैं, y की लिमिट भी, तो तुम जिसमें कंफर्टेबल हो तुम वो वाली लिमिट लेके वहां चल सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x की लिमिट, अगर मैं शुरू करूं हॉरिजॉन्टल रे लेके हम निकालते हैं, सो x की लिमिट यहाँ पे कहाँ से आएगी, दिस इक्वेशन x इक्वल टू 0 से लेकर y/2, एंड y कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है, y फ्रॉम 0 to 4 dx dy। अब ये लिमिट कैसे निकालना है, सो उसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो लेक्चर है डबल इंटीग्रेशन में पार्ट 1, वहां पे हमने देखा है कि x की लिमिट कैसे निकालते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली हमने इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे किया होगा। सो y फ्रॉम 0 to 4 dx का इंटीग्रेशन x 0 to y/2 dy, so 0 to 4 y/2 dy, so it will be 1/2 0 to 4 y dy। इंटीग्रेशन में क्या रहता है, स्टेप बाय स्टेप, पहले x की लिमिट लिखी है तो x का इंटीग्रेशन करना है, फिर y का। ओके, 1/2 y का इंटीग्रेशन y²/2 0 to 4, सो 1/4, यहाँ से कितना आएगा 16। ओके, सो 1/4, सो आंसर यहाँ से क्या आया, आंसर यहाँ से आया 4। बट तुम एग्जाम में क्या करना, कैलकुलेशन में बहुत बार मिस्टेक भी हो सकती है,
तो एक बार जस्ट सारे स्टेप दोबारा देख लेना। ओके, सो एक्स का इंटीग्रेशन लिमिट रखा y/2, 1/2, y का इंटीग्रेशन y² 1/4, 16, 16 का आ जाएगा 4। बट अगर तुम्हें एक बार आंसर ऐसे भी चेक करना है तो कई बार सिंपल ट्रिक से भी हो जाता है। ओके, जो तुम बाद में अगर टाइम हो तो तब कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, अगर ये वाली हाइट देखोगे तुम्हें पता चलेगा y में हाइट कितनी है 4। x में अगर तुम ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे तो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा 2। तो जो अबव पार्ट है वो रेक्टेंगल का हाफ है, और इस रेक्टेंगल का एरिया क्या है 2 × 4 विच इज 8। सो आंसर क्या आना चाहिए था 4। तो इस तरीके से तुम क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो बहुत बार। नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5। हमें क्या करना है, ट्रिपल इंटीग्रेशन हमें कंप्यूट करना है। ओके, लेट मी राइट इट फर्स्ट। सो इन द फिफ्थ क्वेश्चन we have to compute this integration, which is limits are 0 to 1 minus x minus y, 0 to 1 minus x, and 0 to 1. Then what we have, 1 over x plus y plus z plus 1 whole cube dx dy dz। तो तुम्हें मैं सॉल्व करने से पहले एक चीज बता देता हूं जो तुम्हें डबल इंटीग्रेशन में भी याद रखनी है और ट्रिपल इंटीग्रेशन में भी। अगर डबल इंटीग्रेशन में इस तरीके से लिखा है p1x से p2x और से c2d dx कॉमा dy, तो पहले तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तुम्हें ये ध्यान देना होगा। अगर लिमिट पहली लिमिट x के फॉर्म में लिखी है तो ये लिमिट दे रखी होंगी y की, और सेकंड लिमिट ऑटोमेटिकली बन जाएंगी x की। तो पहले जिसकी लिमिट रहती है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस फॉर्म में लिखा रहता है, बट आपको चेक करना है कि पहले किसकी लिमिट दे रखी है। अगर यही आपको कुछ इस टाइप फॉर्म का दिया रहता है से g1y से g2y, g1 और g2 कोई y के फंक्शन है a to b dx कॉमा dy और dy dx, तो यहाँ पे y का फंक्शन है तो लिमिट किसका होगा x का। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है x के रिस्पेक्ट में और फिर y के रिस्पेक्ट में। सिमिलरली अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन में तुम्हें कुछ ऐसे दे रखा है से p1x कॉमा y से p2x कॉमा y, यहाँ पे हमें दे रखा है से q1x से q2x एंड a to b, और सेकंड इंटीग्रेशन हमारा है सपोज p1, पहला तो p1 वाला ही है p1 से p2 और इंटीग्रेशन हमें किसका दे रखा है dx dy dz। सेकंड है हमारे पास f1y से f2y एंड यहाँ पे c2d दे रखा है dx dy dz। अगर पहला फंक्शन x y का है तो ये लिमिट किसकी होंगी x y के अलावा जो भी फंक्शन बचा उसका, क्या हो गया z की लिमिट आ गई। सेकंड क्या है x की है, तो जो x का फंक्शन है तो ये किसकी लिमिट होंगी y की लिमिट होंगी। ओके, तो लास्ट में नेचुरली x की लिमिट बच जाएंगी। तो तुम्हें यहाँ लिमिट देख के बताना है कि पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सिमिलरली यहाँ पे तो हमें z का करना है, बट सेकंड फंक्शन ऑफ y दे रखा है तो ये किसकी लिमिट होंगी x। सेकंड इंटीग्रेशन हमें x का करना है और थर्ड हमें किसका करना है y का। तो इस क्वेश्चन में अगर नोट करोगे तो जीरो कांस्टेंट और जो अपर लिमिट है x कॉमा y का फंक्शन है z की लिमिट है। सेकंड 0 to 1 माइनस x, तो ये किसका फंक्शन है y का है, और लास्ट लिमिट किसकी है x की लिमिट है। तो पहले हमें किसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है z के, फिर y के एंड फिर x के। ओके, तो अब हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो पहले हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन हम इंडिविजुअली करेंगे। अगर तुम करना चाहो तो इंटीग्रेशन एक साथ भी कर सकते हो, बट वहां पे मिस्टेक के क्या रहेंगे, बहुत सारे चांसेस रहेंगे। सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट वी विल इंटीग्रेट जो z वाला पार्ट है उसे हम पहले इंटीग्रेट कर लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड पावर 1 होल क्यूब dz। बट अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो x y और 1 कांस्टेंट हो जाएंगे। तो जो ये इंटीग्रेशन का पार्ट रहेगा ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा z प्लस a का होल क्यूब dz, और इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, तुम इसे अगर सॉल्व वहां पे करना चाहते हो तो साइड में तुम रफ सीट के लिए कर सकते हो। इट विल बी z प्लस a पावर -2 बाई -2। ओके, सो अगर इंटीग्रेशन इसका निकाला हमने, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/2। सो z और 2 में तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना है मेरी राइटिंग में।
x प्लस वाई प्लस जेड प्लस वन होल स्क्वायर, लिमिट्स है 0 to 1 माइनस एक्स माइनस वाई। सो हमने -1/2 बाहर रखा। अपर लिमिट अगर हम चेक करेंगे सो ये आएगा 1/2 होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस एक्स प्लस वन वाई होल स्क्वायर। फिर सेकंड स्टेप पे हमें क्या करना है, y की लिमिट दे रखी है, तो जो भी ये सॉल्यूशन आया है इसे हमें y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। सो वी हैव टू इंटीग्रेट 0 टू कहाँ तक है 1 माइनस एक्स, जो बच ये वाला फंक्शन आ रहा था ये है -1/2 1/4, और इसे हम जस्ट एक स्टेप पे हम और फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इट विल बी 1/2 एक्स प्लस वन वाई प्लस वन होल स्क्वायर -1/8। ओके, तो इसे हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। सो इट विल बी, सो इसे तुम अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे लिख सकते हो। ए पार्ट्स में तुमने ये इंटीग्रेट किया, बी पार्ट में तुम इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हो 2x प्लस वन होल स्क्वायर -1/8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की लिमिट एक्स के फॉर्म में तो y के रिस्पेक्ट में। सो अगर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो x वाले फंक्शन कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रेशन किस फॉर्म का है y प्लस ए होल स्क्वायर डी वाई। सो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या रहता है -1/y प्लस ए। सो इट विल यू विल गेट -2 1/2 x प्लस वन प्लस वन, जस्ट इतना 1/8 का -1/8 y। लिमिट हमने y की लिमिट रख देनी है 0 to 1 माइनस एक्स, और हमें यहाँ पे क्या करना है y की जगह पे हमें ये सब्स्टिट्यूट करना है। सो इट विल बी, अगर अपर लिमिट रखेंगे सो 1 माइनस 2, अगर अपर लिमिट यहाँ पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया व्हाट वी विल गेट 1/2। लोअर लिमिट अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे माइनस y की जगह 0 पे 1/1 प्लस एक्स। अब यहाँ पे हमने अपर लिमिट अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो जस्ट व्हाट वी गेट 1 माइनस एक्स बाई 8। ओके, सो हम यहाँ पे -1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो व्हाट वी विल गेट 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स माइनस 1/4 माइनस 1 माइनस एक्स बाई 8। तो हम 4 और 8 वाले दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ रख सकते हैं फॉर द टाइम बिंग। 2 1 प्लस एक्स माइनस, अगर 8 सो ये 2 टाइम्स आ जाएगा, सो दिस विल बी 3 माइनस एक्स। अब हमने ये क्या कर लिया विद रिस्पेक्ट टू y, तो थर्ड स्टेप क्या रहेगा, हमें 0 to 1 हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। जो भी हमें मिला है इसे 0 to 1 1/2 टाइम्स 1 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स बाई 8 dx। तो पहले का इंटीग्रेशन क्या रहता है 2 ln 1 प्लस एक्स, लिमिट हमारे पास है 0 to 1 माइनस 1/8। सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 1, सो 1/2। यहाँ से क्या आएगा ln 2 माइनस ln 1 माइनस 1/8। यहाँ से क्या आएगा 3 माइनस जस्ट 3 माइनस 0 एंड माइनस 1/2 माइनस 0। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे 1/2 जस्ट ln 2, क्योंकि ln 1 क्या होता है 0 माइनस 1/8, सो 3 माइनस 1/2, सो ln 2/2 माइनस 1/8 टाइम्स 5/2, सो ln 2/2 माइनस 5/16। तो लास्ट में तुम यहाँ पे जब आंसर लिख रहे हो तुम यहाँ पे इसे लिख सकते हो कि ln 2 बाई कितना आया था आंसर हमारा ln 2/2 माइनस 5/16। सो दिस इज द फाइनल आंसर।